Hey student, today we are going to start your chapter 3rd class 12th history, kinship, caste and class. Today we will try to understand your topic beyond the four word subcontinent and conflict. चार वर्ण के परे कॉन्फ्लिक्ट्स और अधीनता और संघर्ष subordination and conflict. While the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed as a sharper social divide by classifying creation, social categories as untouchables. These rested on notion the creation activities, especially those connected with the performance of the ritual, were sacred, and by the extension pure. Those who considered themselves pure avoided taking food from those they designated as untouchables. In sharp contrast to the purity aspect, some activities were regarded as the particularly polluting. These included handling corpses and dead animals. Those who performed such tasks, designated as Chandals, were placed at the very bottom of the hierarchy. Their touch, in some cases, even seeing them, was regarded as a polluting by those who claimed to be at the top of the social order. My dear, before I start this topic, I would like to tell you that in my last class, we discussed about that beyond the four word, where we studied the story Hidimba and Ghatotkacha, and also studied that those groups who were not fit in the Brahmanical one system, so that's why they categorized in the jati, like Swarnkar, it means sonar goldsmith, like Nisad, who lived in forest, they were forest dwellers. Like pastoralists, they were not settled agriculturalists. Like such type of other communities. We studied the Hidimba story. It means indirectly of women who called man-eating Rakshasi. Their name was Hidimba. Her brother name was Hidimb. After a little conflicts, Hidimba got married with Bhim. This story gives us the proper information about that कि समाज में एक ऐसा वर्ग भी था जो ब्राह्मणिकल विचारधारा को नहीं मानता था, और इतिहासकारों ने ऐसा माना, कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि ये वो वर्ग था जो ब्राह्मणीय परंपराओं को नहीं मानता था, इसलिए इन्हें राक्षसी कहा गया। अब आप नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे, चार वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष, सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बियॉन्ड द फोर वर्ण, तो वहाँ पे देखेंगे कि ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। समाज के कुछ ऐसा वर्ग था जिसको ब्राह्मण अपने साथ नहीं रखते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया। सामाजिक वैषम्य और अधिक प्रखर बनाया। मतलब समाज का एक ऐसा वर्ग जो अस्पृश्य माना गया, जो अनटचेबल माना गया, जिसको उन्होंने ब्राह्मणी परंपरा के अंतर्गत वर्ण सिस्टम या जातियों के अंतर्गत नहीं रखा, या अगर जातियों में रखा भी तो सबसे निम्न जाति व्यवस्था में उसको रखा। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ब्राह्मणों ने ये डिवाइडेशन, ये कैटेगराइजेशन कैसे किया? तो ब्राह्मणों का ये मानना था कि कुछ कर्म खास तौर पे वे जो अनुष्ठान संपन्न करते हैं उससे जुड़े होते हैं, इसको ब्राह्मणों ने कहा कि ये पवित्र कार्य है। और कुछ काम ऐसे थे जिसको ब्राह्मणों ने कहा कि ये अपवित्र है। तो जो अपवित्र काम करने वाले लोग थे उन्हें ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा, जाति व्यवस्था से बाहर रखा, उन्हें पॉल्यूटिंग कम्युनिटीज के रूप में स्वीकार किया। उनके द्वारा छुआ गया कोई भी चीज, भोजन, वस्त्र, दान ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते थे। पवित्रता के आधार पे
इस पहलू को ठीक विपरीत कुछ ऐसा कार्य था जिसको ब्राह्मण अच्छा नहीं मानते थे, जिसको पॉल्यूटिंग वर्क के रूप में कंसिडर करते थे। I mean to say that untouchable. In the sharper control to the purity aspect, some activities were regarded as the particular polluting. This includes handling calves and dead animals. Those who performed such tasks designated the chandals were placed at the very bottom of the hierarchy. जो शवों को या अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, चांडालों का स्पर्श तक बहुत ही गलत माना जाता था। यहाँ तक कि उन्हें देखना भी एक अपवित्र कार्य के रूप में काउंट करता था। मतलब जाति व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान चांडालों को दिया गया। चांडाल जो थे वो इस पूरी व्यवस्था में अत्यंत ही दूषित जाति के रूप में रखा गया। हायरार्की में भी सबसे निम्न कोटि में थे वो। इस तरीके से चांडाल वो वर्ग था जो अपवित्र कार्य करता था, जैसे लाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, फेंके गए जो बर्तन थे उसका यूज करना, फिर लोहे के आभूषण। अभी उसके बारे में हम मनुस्मृति में क्या दिया गया है, इन चीज़ों को हम अभी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि समाज में कुछ ऐसा वर्ग है जो पॉल्यूटिंग वर्ग के आधार पे कैटेगराइज किया गया, जिनको अनटचेबल्स कहा गया, जिसमें ब्राह्मणों ने एक अनटचेबल्स कैटेगरी को कैटेगराइज करने के लिए प्योर और इम्प्योर दो वर्ड का इस्तेमाल किया। ब्राह्मणों ने कहा कि ये कैटेगराइजेशन कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि सेक्रेड एंड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्योर, दोज हु कंसीडर देमसेल्फ प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डेजिग्नेटेड अनटचेबल्स। मतलब कहने का सेंस यही था कि जो लोग दूषित लोगों से दूर रहते हैं वो लोग प्योर होंगे, प्योर कार्य करते हैं। मतलब ब्राह्मणों ने अपने काम को प्योर बताया, और जो निम्न को जो चांडालों के काम थे, जैसे लाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, उन चीज़ों को व्यवस्थित करना, लोहे, तो इस तरह के काम को उन्होंने अच्छा नहीं माना, इम्प्योर माना, और ये काम करने वाले वर्ग को उन्होंने अनटचेबल कहा। तो इस तरीके से उन्होंने एक वर्ग के रूप में इनको सोचा कि ये। माय डियर स्टूडेंट, we are going to read the very important story, source 10. In this story we will try to understand that the specific work which proved that कि जन्म के आधार पर श्रेष्ठता नहीं बल्कि कर्म के आधार पर श्रेष्ठ व्यक्ति बन सकता है। और क्या चांडालों को जो स्थिति समाज में दी गई, क्या वो स्थिति चांडालों की रही, क्या चांडालों ने उसका विरोध नहीं किया? तो इन्हीं चीज़ों को हम सोर्स 10 के आधार पर समझेंगे। सोर्स 10 में क्लियर है कि डिड चांडाल्स रेसिस्ट द अटेम्प्ट ऑफ पुश देम टू द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर। क्या चांडालों ने अपने को समाज में सबसे नीचे जगह पर रखने का विरोध नहीं किया? क्या उन्होंने इस व्यवस्था को आसानी से स्वीकार कर लिया? डिड चांडाल्स रेसिस्ट अटेम्प्ट्स टू पुश देम टू द बॉटम ऑफ द सोशल ऑर्डर? रीड द स्टोरी विच इज पार्ट ऑफ द मातंग जातक, अ पाली टेक्स्ट where the bodhisattva, the Buddha in the previous birth, is identified as a Chandals. एक कहानी है मातंग जातक से जो ली गई है। इस कहानी को पढ़ते हैं जो पाली भाषा में लिखी गई, जो पाली में लिखी गई है, पाली स्क्रिप्ट में। इस कथा में बोधिसत्व पूर्व जन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है, एक चांडाल के रूप में दिखाए गए हैं। कहानी कहती है, वंस द बोधिसत्व वॉज बॉर्न आउटसाइड द सिटी ऑफ बनारस एज ए चांडाल सन नेम्ड मातंग। बुद्ध बनारस के बाहर एक शहर में चांडाल के पुत्र के रूप में मातंग नाम से पैदा होते हैं। वन डे when he had gone to the city
ऑन सम वर्क, एक दिन जब वो शहर में गए थे कुछ काम के लिए, ही इनकाउंटर्ड दित्य मांगलिक, उन्होंने दित्य मांगलिक को देखा। ही इनकाउंटर्ड दित्य मांगलिक, जहां उनकी मुलाकात हुई दित्य मांगलिक से, द डॉटर ऑफ मर्चेंट, जो एक व्यापारी की पुत्री थी। व्हेन शी सॉ हिम ही एक्सक्लेम्ड, जब मातंग ने देखा दित्य मांगलिक को, और दित्य मांगलिक ने जब मातंग को देखा, तो दित्य मांगलिक द डॉटर ऑफ मर्चेंट, सी एक्सक्लेम्ड, आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस, मैंने कुछ अपवित्र चीज देख ली। बल्कि चिल्ला के बोली कि मैंने कुछ अपवित्र चीज को देख लिया, अशुभ चीज को देख लिया। एंड वाश्ड हर आइज, अपनी आंखों को धुला। द एंग्री हैंगर्स ऑन देम बीट हिम अप, इससे क्रोधित होकर जो हैंगर्स थे उस दित्य मांगलिक के, उन्होंने मातंग को खूब पीटा, बुरी तरह से उनकी पिटाई की। इस पिटाई से नाराज होकर के इन प्रोटेक्ट ही वेंट एंड ले डाउन एट द डोर ऑफ द फादर्स हाउस, मातंग गए व्यापारी के घर के सामने, सो गए, लेट गए। शी कैरीड द स्टाविंग मातंग बैक टू द चांडाल सेटलमेंट्स, विरोध में जब मातंग घर के सामने जाकर लेट गए, 7 दिन बीत गए उनको लेटे हुए। रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को ऐसे ही लेटे देखा, मतलब मातंग को लेटे ही देखा। तो 7 दिन के बाद मर्चेंट बाहर आया और उसने अपनी पुत्री दित्य मांगलिक को मातंग को सौंप दिया। मातंग, दित्य मांगलिक मातंग के साथ चांडालों की बस्ती में वापस गई। मातंग back to the Chandal settlements. Once she returned home, he decided to renounce the world after attaining the spiritual power. जब वो चांडालों की बस्ती में मातंग पहुंचे तो उन्होंने तय किया कि अब वो घर छोड़ देंगे, संसार छोड़ देंगे। मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस जब दोबारा वापस लौटे तो उन्होंने दित्य से शादी कर ली। मातंग और दित्य से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मांडव्य कुमार। मांडव्य कुमार अत्यंत योग्य था। जल्दी उसने तीनों वेदों की शिक्षा ग्रहण कर ली और रोज 16,000 ब्राह्मण, 16,000 ब्राह्मणों को उसने भोज देना शुरू किया, खाना खिलाना शुरू किया। वो डेली 16,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाता था। एक दिन, आई मीन टू से दैट यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड दैट कि सी, यहाँ से ऊपर से देख लीजिए कि दित्य मांगलिक डॉटर ऑफ द मर्चेंट, व्हेन शी सॉ हिम ही एक्सक्लेम्ड, आई हैव सीन समथिंग इनऑस्पिशियस एंड वाश्ड हर आइज, द एंगर hangers on them beat him up. In protest, he went and lay down at the door of her father's house. On the 7th day, they brought out the girl and gave her to him. She carried to the starving Matang back to the Chandal settlements. Once returned home, they decided to renounce the world. After attaining spiritual power, he returned to Banaras and married her. A son named Mandavya Kumar was born to them. He learned to their Vedas as he grew up and began to provide food to 16,000 Brahmins every day. One day, Matang raised in rage with a clay alms bowl in his hand, arrived at his son's doorstep and begged for food. Mandav replied that he looked like an outcast and was unworthy of alms. The food was
meant for the Brahmins, Matang said, those who are proud of their birth and are ignorant do not deserve gift. On the contrary, those who are free from vices are worthy of offering. एक दिन जब मातंग फटे चिथड़े कपड़ों में हाथ में मिट्टी का भिक्षा पात्र लिए हुए मातंग अपने पुत्र मांडव्य कुमार के दरवाजे पे आए तो उन्होंने उससे भोजन मांगा। मांडव्य कुमार ने कहा कि तुम देखने से अत्यंत ही पापी प्रतीत होते हो, ये खाना जो मैं खिला रहा हूं ये ब्राह्मणों के लिए है और तुम इस भिक्षा के योग्य नहीं हो। मातंग अपने पुत्र मांडव्य की बातों को सुनकर के उसको उत्तर देते हैं कि जिन्हें अपने जन्म पे गर्व है पर अज्ञानी है, देवर इग्नोरेंट, उन्हें भेंट का पात्र नहीं माना जा सकता। इसके विपरीत जो लोग दोष मुक्त हैं वे ही भेंट के योग्य हैं। ऑन द कंट्री दोज हु आर फ्री फ्रॉम वाइसेस आर वर्दी ऑफ ऑफरिंग। Mandavya lost his temper and asked his servant to throw the man out. ये बात सुनकर के मातंग की बात सुनकर के मांडव्य कुमार अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस व्यक्ति को उठा के बाहर निकाल दो। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब ये पूरी कहानी दित्तमांगलिक को मालूम चली तो दित्तमांगलिक दौड़ती हुई बाहर आई और मातंग के पीछे गई और उन्हें वापस आने के लिए निवेदन करने लगी और अपने पुत्र मांडव्य कुमार के द्वारा किए गए कार्य के लिए माफी मांगने लगी। मातंग ने उससे कहा कि वह उनकी भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन को कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। आई मीन टू से दैट Mandavya lost his temper and asked his servant to throw the man out. Matang rose in the air and disappeared. When Ditthamanglik learned about the incidents, she followed Matang and begged his forgiveness. He asked her to take a bit of the leftover from his bowl and give to it Mandavya and Brahmans. इस कहानी से हमें एक चीज़ क्लियर सोचना मिलती है कि अब वो समय आ चुका था जब लोग ब्राह्मणिकल जो प्रैक्टिसेस थे उसका विरोध करना शुरू कर दिए थे। अब लोग जन्म के आधार पर श्रेष्ठता का प्रतिरोध करने लगे थे। बौद्ध धर्म के आ जाने के कारण अब समाज में ये बात फैल रही थी कि ब्राह्मण सिर्फ जन्म के आधार पर श्रेष्ठ नहीं हो सकते यदि उनके अंदर योग्यता नहीं है तो। और ये स्टोरी हमें इस चीज़ की सूचना देती है। साथ ही साथ हमें इंट्राकास्ट मैरिज की बात भी बताई है। इंटरकास्ट मैरिज, एक मर्चेंट की पुत्री की शादी किससे होती है? मातंग से होती है जो चांडाल था। तो हमें ये भी सूचना मिलती है। फिलहाल ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से ये बताती है कि किस तरीके से समाज अब बदल रहा था, समाज के लोगों की विचारधाराओं में परिवर्तन आ रहा था और लोग एक तरह से पूरी तरीके सिस्टम को क्या कर रहे थे, सिस्टम के अगेंस्ट जा कर के जो गलत थी उसका प्रतिरोध करने का प्रयास कर रहे थे। 6th सेंचुरी BC में बुद्धिज्म और जैनिज्म के आ जाने के कारण अब इस बात का बड़ा प्रतिरोध होने लगा ब्राह्मणिकल रिलीजन का, जो कि एक्सट्रीम प्रैक्टिस के अंतर्गत आके कुछ ऐसे कार्य व्यवहार करते थे जो कि समाज के लिए सही नहीं था। तो यहाँ पे अब जो 4th टॉपिक है हमारा बियॉन्ड द बर्थ, इसको देखते हैं। बियॉन्ड द बर्थ टॉपिक, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। रिसोर्सेस एंड स्टेटस, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा टॉपिक का नाम है आपके। अब आप इन चीज़ों को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में आप कई सारी चीज़ों से परिचित होंगे। जैसे यदि आप अध्याय चैप्टर 2 में वर्णित
जो इकोनॉमिक रिलेशन थी उस पर ध्यान दिया होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि समाज में कई सारे वर्ग थे। कुछ स्लेव्स थे, कुछ लैंडलेस पीजेंट्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ फिशर फोल्क थे, पास्टलिस्ट थे, पीजेंट्स थे, विलेज हेडमैन्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, मर्चेंट्स थे, तरह के तमाम सारे लोग थे। कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि चैप्टर 2 में आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें दास, भूमिहीन, खेतिहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, बनिया और राजा, सभी का इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ था। एक समाज के एक वर्ग के रूप में इनका हमको विकास होते हुए दिखाई दिया था। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हमें विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करके देखेंगे। हम इस टॉपिक को और अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आर्थिक संसाधनों पर उनका नियंत्रण था। तो 4.1 हमारा टॉपिक है जेंडर वर्सेस प्रॉपर्टी। आई मीन टू से दैट इफ यू recall the economic relation discussed in chapter 2, you will realize that the slave, landless agricultural laborers, hunters, fisher folk, pastoralists, peasants, village headmen, craftsmen, merchants and kings emerged as a social actors in the different part of the subcontinent. Their social positions were often shaped by their access to economic resource. Here we will examine the social implication of access to the resource in certain specific situation. 4.1 Gender access to property. Gender access to property संपत्ति का अधिकार, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकारों की बात है। Consider the first a critical episode in the Mahabharata. During the course of the long drawn rivalry between the Kaurav and Pandav, Duryodhana invited Yudhishthir to game of dice. The latter, who was deceived by his revival, stake his gold, elephant, chariots, slave, army, treasure, kingdom, property of its subject, his brothers, and finally himself, and lost all. Then he staked their common wife Draupadi and lost her too. महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे हम लोग। एक महत्वपूर्ण घटना को पे देखेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही जो कंपटीशंस थी, प्रतिस्पर्धा थी, उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन इनवाइटेड युधिष्ठिर टू गेम ऑफ डाइस। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस गेम ऑफ डाइस में अपना सब कुछ हार गए। सब कुछ, it means everything: gold, elephant, chariot, slave, army, treasure, kingdom, everything. He lost. Then he staked their common wife Draupadi and lost her too. और अंत में उन्होंने अपने सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और उसे भी वो हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे पर जो कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जो संपत्ति होगी उसे माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों को समान रूप से बांट दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था मनुस्मृति करता है। किंतु
इस बंटवारे में जो सबसे बड़ा होगा उसको विशेष भाग मिलेगा, एक अच्छा पार्ट मिलेगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बड़ा पुत्र में ज़्यादा, फिर धीरे धीरे छोटे पुत्र में कम होते चला जाएगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन की हिस्सेदारी मांग नहीं कर सकती थीं। वीमेंस को कोई राइट नहीं था कि वो पैटर्नल प्रॉपर्टी में कोई भी डिमांड करे, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री को मिला हुआ विवाह में धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। मनुस्मृति कहता है कि पति की संपत्ति को पत्नी न बेच सकती है, ना ही छुपा सकती है, ना ही अपने पास कोई प्रॉपर्टी को गुप्त रूप से रख सकती है। इस तरह की व्यवस्था वो नहीं कर सकती। मतलब मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनी वाकाटक राजकुमारी प्रभावती गुप्ता के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा, किंतु अधिकतर एविडेंस जो है, इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है और लिटरल एविडेंस है, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं हैं वो संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, अपनी पकड़ रखती थी। सामान्यतः भूमि, पशु, धन पुरुषों के नियंत्रण में थे, लेकिन कभी कभी हमें रॉयल फैमिली में इन पे स्त्रियों के अधिकार की भी पुष्टि मिलती है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई होगी। कहने का मेरा सेंस इतना ही है माय डियर कि अगर आप देखें जेंडर असेस टू प्रॉपर्टी को, तो कहता है कंसीडर फर्स्ट द क्रिटिकल एपिसोड इन महाभारत ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लॉन्ग ड्रॉन rivalry between the Kaurav and Pandav. Duryodhana invited Yudhishthira to game dice. Later, who was the deceived by his rival, stacked his gold elephant chariots, slaves, army, treasury, kingdom, the property of his subject, his brother, and finally himself, and lost all. Then he stacked their common wife Draupadi and lost her. अपने भाइयों को, अपने धन को, सोने को, चांदी को, सब कुछ कमा दिया और लास्ट में उन्होंने अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया और वो हार गए। इश्यू ऑफ ओनरशिप far grounded in stories such as this one also figure in the Dharma Sutra, the Dharma Shastra. According to the Manusmriti, the paternal estate was to be divided equally amongst the son after the death of parents, with a special share of the eldest. Women could not claim a share of these resources. However, women allowed to retain the gift they receive on the occasion of the marriage as the स्त्रीधन. Here, स्त्रीधन का बड़ा महत्व है। स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन जैसे मैंने आपसे कहा कि स्त्रीधन जो महिला लड़कियों को विवाह के समय जो मिलता था, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का नियंत्रण होता था, इसे स्त्रीधन कहते थे। इस संपत्ति स्त्रीधन को उसकी संतान अपनी विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी। It means literally स्त्रीधन means women's wealth. This could be inherited by their children without the husbands having any claims on it. At the same time, the Manusmriti warned women against the hoarding family, the property, or even their own valuable without the husband's permission. मनुस्मृति इस बात के लिए रोकती है, महिलाओं को इस बात के लिए कहती है कि स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त रूप से संचित करने पे रोक लगाती है, या चेतावनी देती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। You have read about wealth
women such as the Vakata Queen Prabhavati Gupta, Chapter 2. However, the cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggests that while upper class women may have had access to resource, land, cattle, and money, were generally controlled by men. In other words, social differences between men and women were sharpened because to the different in the access to the resource. आपने वाकाटक प्रभावती गुप्ता के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में सूचना हमें इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है, टेक्सचुअल एविडेंस से भी मिलती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि जो उच्च वर्ग की महिलाएं थीं उनका अधिकार प्रॉपर्टी पे तो था, लेकिन जो कॉमन फैमिली के लोग थे उनका अधिकार प्रॉपर्टी में नहीं था। सामान्यतः जो जमीन थी, जो जानवर थे, जो धन था, उस पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उसके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक स्पष्ट होती है। ये बात क्लियर हो जाती है कि दोनों के जो बीच का डिफरेंसेस है वो इसी आधार पे है कि जो प्रॉपर्टी राइट से अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, जेंडर वर्सेस प्रॉपर्टी राइट्स। और हम लोगों ने ये देखा कि प्रायः बाद की सोसाइटी में समाज जो था वो क्लियरली डिवाइड था। लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे प्रॉपर्टी का भी एक जो डिस्ट्रीब्यूशंस था, पुरुष के पास ज़्यादा अधिकार थे, पैटर्नलिन सोसाइटी थी इसलिए। लेकिन कुछ उच्च क्लास की, मतलब जो उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनके पास भी संपत्ति का अधिकार था, और ये संपत्ति ही दोनों के बीच डिस्ट्रीब्यूशंस को, सोशल डिफरेंसेस को क्लियर करती थी। सोशल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन वर शार्पेंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एक्सेस टू द रिसोर्स। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉर एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। गुड बाय एंड टेक केयर।